Thank you, sir. So, the, so we were talking about this cathode rays somewhere in 1850s nearby. It was some work was done during this time based on cathode rays by various scientists, and that led to the discovery of the first subatomic particle, है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो है, by J.J. Thomson. So he actually proposed the discovery. I mean, he was the one who gave this idea on the discovery of the electron. Okay, and then there were certain atomic models were also being proposed close to 1900 century, close to the 1890 and 1900. ठीक है, 1890 और 1900 के करीब आप जब भी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे देयर आर सम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स पीपल वेर प्रपोजिंग. ठीक है, so we are not going all those things, but we'll just see in very brief what exactly photoelectric effect came into picture. Okay, so 1887 Heinrich Hertz, so he actually provided a practical demonstration to the existence of the electromagnetic waves, है ना. So Maxwell's equations were actually given by him much before this, much before the 1887 Maxwell gave the equation, but experimentally verified जो हुआ था, so Heinrich Hertz was the one who verified those things. ठीक है, and what one more interesting thing he studied during this time was that he noticed that these charge objects which are illuminated by the ultraviolet light, so they lose their charge very quickly as compared to the non-illuminated charge objects. Okay, this was the observation he made, that if you have a charge object and if you shine this charge object by ultraviolet light, then they lose their charge. उसका जो value है charge, so that will decrease if you compare it with the non-illuminated charge objects. So that was just an experimental observation, but he could not provide any description. What was the theory behind this? All right, in 1887. And then 1889, as we said, the Sir J.J. Thomson actually came up with some beautiful idea on. So he used the same apparatus for the study of cathode rays, and he experimented by shining an ultraviolet light on the cathode. ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट को उन्होंने he just incident on the cathode, and he actually showed practically that the current was produced with the same property as the cathode rays, because cathode rays is also the same thing. I mean, it is emitting your electrons, right? So he gave this idea experimentally, but still the theoretical explanation was missing, and a theoretical explanation was not yet being provided in those days in 1889. And after about 13 years, you know, Dr. Philip Leonard in 1902, so he was a student of Heinrich Hertz, and he continued the same studies what Hertz was doing and J.J. Thomson was doing. He continued these studies, and what he was doing, that he was manipulating the properties of the light which are used to incident on the given material. Like, for example, he changed the frequency of the light, he changed the intensity of the light, and then he used an external voltage source which is called stopping potential that would actually stop the electrons which are produced. Okay, and he actually carried out all these studies, and he came up with some conclusions, and he came up with this conclusion. So these are the conclusions which are provided in brief over here. So let us just look at this. So he said a minimum frequency of light is required for the photoelectric effect to be observed, so there is a certain minimum value of the frequency of light that is required if you want to observe the photoelectric effect. अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू से कम है तो यू कैन नॉट ऑब्जर्व द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही ऑब्जर्व्ड. बट वंस दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज एक्सीडेड, एन इमीडिएट एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, है ना. तो एक बार जब वो आपका फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़े, मतलब जो आपका इंसिडेंट लाइट है,
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेंज से आगे बढ़ेगा तो you will see an immediate emission of the photoelectrons, right? So photoelectrons are what are these photoelectrons? These are nothing but simply जब भी आप metal के ऊपर when you are shining the light on the metal plate, it will emit the electrons. So these are called photoelectrons. ठीक है? So these photoelectrons are emitted immediately when the incident light will cross the certain amount of frequency. ठीक है? Second thing he said, by manipulating the intensity of the light and measuring the stopping potential of the photoelectrons, he showed that the maximum kinetic energy is independent of the intensity. Maximum kinetic energy किसका? तो कि electrons का. ठीक है? What he is saying that when you shine a light on a metal plate, then electrons are emitted. ठीक है? That he actually experimentally showed this. He already showed these things, and he also said that there is a certain minimum frequency needed for this light in order to eject the electrons. Because we know that metals have these free electrons on the surface. Metals have a free electrons on the surface, and these electrons are just moving around the surface. So when you shine the metal surface with a sufficient wavelength, जो हमने बताया कि जो मिनिमम वेवलेंथ चाहिए है ना, इट रिक्वायर्स ए मिनिमम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो भी बोलो आप, तो उतनी फ्रीक्वेंसी से वो लाइट जब आप गिरेगी मेटल के ऊपर, इसके ऊपर गिरेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री फ्रॉम दिस मेटल सरफेस. Excuse me. So this electron would actually travel through this vacuum tube, and on the other side they are actually captured on your another target. I mean, let me just show you here also. Yeah, this is also a better way. So when these electrons are emitted, so they are actually collected on the other side of your setup. ठीक है? So what he is saying is that by manipulating the intensity of the light and by measuring the stopping potential. Now what is the stopping potential? तो stopping potential is your applied voltage. यहाँ पे जो भी voltage आपने apply किया हुआ है, ठीक है, या तो इसकी वजह से भी जो generate होगा. There are two things. तो यहाँ पे जो voltage apply किया हुआ है, तो ये voltage variable है, आपके control में है. तो ये voltage अगर आप I mean, sorry, not this voltage, but there is a voltage in between these two plates. So ये voltage अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि these electrons will be stopped from reaching your target. ठीक है, ये आपका जो कलेक्टर है, यहाँ पे पहुंचने से पहले उसको रोका जाएगा by the application of this external voltage. तो by manipulating the intensity of the light and measuring the stopping voltage, stopping potential for the photoelectrons, he showed that the maximum kinetic energy is independent of the intensity. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से जो एमिट होते हैं, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो मैक्सिमम ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इफ यू हैव टू लाइट्स विथ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एक हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी, दोनों में आप जब भी व्हेन यू आर थ्रोइंग इट ऑन द मेटल सरफेस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी है, so that will be not different either you throw the lower intensity light or you throw the higher intensity light. ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, ऐसा that was he observed, right? And the third thing he observed was that by manipulating the frequency of the light and the by measuring the stopping potential, he discovered that the kinetic energy is greater for higher frequencies of the light. ठीक है, now he said that once you produce these electron, ठीक है, एक तो पहला तो क्या था कि there requires a minimum frequency of light to produce these photoelectrons, है ना. ये photoelectrons को produce करने के लिए you need a minimum frequency of the light. But once you produce this electron, and then you can actually change this what he said, that by changing the stopping potential and beneficial frequency, that the maximum kinetic energy is greater for the higher frequencies. ठीक है, higher frequency का light है, तो that will actually produce highly energetic electrons.
ठीक है, अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. देयर आर टू थिंग्स ही सेड. यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करी है, दूसरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करी है. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट ही मेड. नाउ लेट अस मूव अहेड. If we go, acha, so Philip Leonard, he actually observed all these observations experimentally. He provided the data also in 1902. He did all this work, but unfortunately his results were mostly qualitative, and he was not able to obtain any specific quantitative relationships due to the limitations of his equipment. ठीक है, तो उसके जो इक्विपमेंट थे उसकी लिमिटेशंस की वजह से he cannot actually provide any specific data on all these were the observations he made. पर इसको concrete मतलब if you want to prove this thing, then it requires certain numbers. इसके लिए कुछ डेटा चाहिए, कुछ quantified डेटा चाहिए. तो उसके जो डेटा थे it was all qualitative, but there were no quantitative relationships due to the limitations of the equipment. So he got so many honors because of this work. उन्होंने ऑलरेडी ये सब काम किया था, ठीक है, बट उसको नोबेल प्राइज तो नहीं मिला था, राइट. नोबेल प्राइज वाज गिवन टू आइंस्टाइन बिकॉज आइंस्टाइन वाज द वन, ही एक्चुअली एक्सप्लेन ये जो पूरा इन्होंने जो पूरा एक्सपेरिमेंट सब किया था उसका आंसर. क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करना एक अलग बात है और उसको फिर जस्टिफाई करने के लिए थ्योरी प्रोवाइड करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना. तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है, so all these observations were also made by Einstein too. He also did all those experiments. उसको भी similar conclusions मिले थे, है ना, उसको भी similar conclusions मिले थे, but there was no proper description for this particular effect, this photoelectric effect, and he was the one who provided the mathematical description for the photoelectric effect, and based on his idea that the light is consisting the discrete quantities of energy or quanta. These are called photons, right. तो ये आपने अगर पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, अगर आपने शायद पढ़ा हो, तो प्लांक, मैक्स प्लांक was the one, he gave this idea of the in 1901 black body radiation, where he said that light has a certain value of frequency. I mean, light is made up of particles and these small particles are is called quanta, है ना. क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, द वेव पैकेट, एंड दीज आर कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है. बट उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करना एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज डन बाय आइंस्टाइन इन 1905, एंड 1905 ही डिड दिस थिंग्स. तो उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था बाद में, लेटर ऑन. अच्छा, इफ यू लुक एट द इक्वेशंस, तो लेट मी दिस, या, if you look at the equations, so setup जो है, which is something like this, that you are shining a light on your target material, and electrons which are emitted, these are collected on the other side, and you have connected the emitter in your circuit to measure the current, कि कितना current आपको मिलता है circuit में due to the emission of these photoelectrons. And we have also connected a voltmeter along with the battery. ठीक है, battery is also connected. Maybe if I show it to you in this one, यहाँ पे, हाँ, पावर सप्लाई इज ऑल्सो कनेक्टेड. आपको एमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है, पावर सप्लाई इज ऑल्सो कनेक्टेड. तो दिस विल मेजर जो यहाँ से करंट पास हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू, तो इट विल मेजर द करंट ओवर हियर. दिस इज इन पिको एम्पियर, 10⁻⁻15 एम्पियर, ठीक है, सॉरी 10⁻⁻12 एम्पियर, 10⁻⁻12 एम्पियर, and this is your power supply in voltage which is in volt. So this is variable, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है. अच्छा, ये इसको भी कैसे रिमूव करें, because I will need to change this voltage here. अच्छा, हाइड का ऑप्शन आ रहा है. ओके, सो वोल्टेज जो है that is over here, we can change this voltage, ठीक है, we can change this voltage, ये वाला जो वोल्टेज है. और इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशंस कैसे हैं इसके, तो इफ वी सी दैट जो ऑब्जर्वेशंस फिलिप लेनार्ड ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे कि दैट रिक्वायर्स ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी. I don't know why it is stuck over here.
हाँ. So what the observations made by the Leonard is that minimum frequency of the light is required for the photoelectric to be observed. So that frequency is called, let's say it is denoted by mu naught. Okay, that minimum frequency. So mu naught is the minimum frequency that is required to observe the photoelectric effect. And when you multiply this frequency by Planck's constant, so whatever that energy is there, so that minimum energy is needed for the electrons to escape from the metal surface. So that is called work function. Okay, it is called work function for that particular metal. So that is denoted by W. W is equal to h nu naught. When nu naught is the threshold frequency. जो हमने कहा minimum frequency which is required to observe the photoelectric effect. All right. So different metals have a different work functions. So these are the work functions which are displayed in this table. So all the metals will have a different work function. So this depends on what is the electronic configuration of the metal. ठीक है, metal की electronic configuration क्या है उसके ऊपर depend करता है. Now according to these Einstein's explanations, he said that the photoelectric effect should obey the follow relation. So h nu, which is the incident light, okay, h nu, which is the incident light, I mean the energy. So both the side it is an energy conservation. Both the side it is an energy conservation, and Ke maximum, which is the kinetic energy. Okay, this is your kinetic energy. So maximum kinetic energy plus some work function, which is the minimum work function required for a given particular metal. तो दोनों का जब आप समेशन करते हैं, so that much light should be incident. और अगर आप उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करें तो आप ये बोल सकते हैं कि when you are throwing the energy of h nu on the metal, it is splitted into two parts. Some part is used in the work function, क्योंकि minimum work function है उतना तो एनर्जी चाहिए उसको, एंड बाकी का जो एनर्जी है that is released in the form of kinetic energy of electrons. ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, so some part of the energy is released in the form of kinetic energy of the electrons. All right. And if you do some mathematical calculations, so what we get that maximum kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught. ठीक है, maximum kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught. So there are different ways that one can do this experiment on photoelectric effect. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. तो जैसे कि एक तो फोटो, इसमें प्लांक कांस्टेंट है तो प्लांक कांस्टेंट भी मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इससे प्लांक कांस्टेंट भी मेजर कर सकते हैं. और दूसरा चीज है कि वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट मेटल्स, क्योंकि हमारे पास सेटअप है पूरा. तो ये अभी सोडियम का हमने ये लिया हुआ टारगेट, एंड इसके ऊपर वी आर थ्रोइंग द लाइट, एंड इफ वी कैन फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप, ये जो इक्वेशंस के ऊपर से हम लोग ये सारी जो वर्क फंक्शंस है तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा है कि हम जो ग्राफ है, अलग अलग बिहेवियर है, तो वो स्टडी कर सकते हैं जो लेनार्ड ने जो ऑब्जर्व किए थे. है ना, यहाँ पे जो लिखा था कि बाय मैनिपुलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट and measuring the stopping potential of the photoelectrons, that maximum kinetic energy is independent of the intensity. Okay, so that means the relationship between the intensity of light, the stopping potential of the photoelectrons, and the kinetic energy of the electrons, वो study कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. दूसरा है again the frequency of the light, stopping potential, and the kinetic energy. तो there are different things one can do. तो let me just show you. जैसे कि ये है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए फॉर अ डिफरेंट मेटल. तो फॉर दैट वी कैन कैलकुलेट दिस वर्क फंक्शन. ऑलराइट. और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है कि इतना एनर्जी जब हम देते हैं, ईवी नॉट जितना एनर्जी, बिकॉज दैट इज द वोल्टेज यू आर प्रोवाइडिंग. ये जो वोल्टेज है उतना वोल्टेज यहाँ पे हम उसको दे रहे हैं. तो EV naught is actually equal to kinetic energy. When both these energies are equal, electrons will be stopped. ये इलेक्ट्रॉन है, स्टॉप हो जाए. अभी तो देखो यहाँ पे 0 वोल्ट है. ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्ट दिखा. अभी लेट्स मी जस्ट इंक्रीज इट. देखो करंट 0 हो गया. ठीक है, यहाँ पे करंट इज ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 0. तो नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पासिंग फॉरवर्ड, वो आगे नहीं जा रहे हैं.
तो वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, so that stopping minimum stopping potential minimum stopping potential when it is equal to the kinetic energy of the electrons, तो electrons will stop. तो वो जो अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड रिवर्स पोटेंशियल है, तो वो भी हम स्टडी कर सकते हैं, कर सकते हैं। राइट, सो फॉर एग्जांपल जो फोटो करंट हमें मिल रहा है, तो फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड रिवर्स पोटेंशियल, और वो भी कितने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो दिया है, अभी दिया है मैंने 500 नैनोमीटर, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻18 हर्ट्ज। तो इतनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन प्लॉट द ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? फोटो करंट वर्सेस दी स्टॉपिंग पोटेंशियल, या तो अप्लाइड रिवर्स पोटेंशियल, दोनों एक ही चीज है। तो फोटो करंट वर्सेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आई कैन डू इट ओवर हियर। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने ये वोल्टेज दिया हुआ है, लेट मी जस्ट पुट इट टू 0। ठीक है, अभी 0 पे मैंने उसको रख दिया है, तो 0 वोल्ट पे व्हाट इज द फोटो करंट? तो वो आ रहा है 8 पिको एम्पियर। ठीक है, तो इसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? फोटो करंट वर्सेस दी वोल्टेज, तो 8 पिको एम्पियर वर्सेस 0 वोल्ट, तो वो कहाँ होगा? वोल्टेज 0 है, मतलब 0 यहाँ पे कुछ नहीं, 8 मतलब मैक्सिमम यहाँ पे होगा फोटो करंट। ठीक है, अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उसको मैन्युअली टाइप करता हूँ 0.1। ठीक है, मैंने 0.1 कर दिया, तो अभी देखो करंट क्या होगा? रिड्यूस हो गया 4.1 और समथिंग व्हाटएवर जो भी आ रहा है। तो 4.1 पिको एम्पियर वर्सेस 0.1 वोल्ट, तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा डिक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज हो गया, लेकिन आपका पोटेंशियल जो अभी है बढ़ रहा है। अभी और आगे जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 0.2 कर दिया मैंने, तो और कम हो गया करंट। ठीक है, ऐसे ही जैसे थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा होगा कि करंट 0 हो जाएगा, तो आपका कर्व जो है पूरा क्या हो जाएगा? डीके होगा। ठीक है, इट विल जस्ट डीके लाइक दिस। नाउ ये कर्व किस कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हुआ? तो कि दिस मच फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमने किया हुआ अभी। नाउ दिस इज फॉर वन पर्टिकुलर मेटल, सिमिलरली आप बहुत सारे मेटल के लिए कर सकते हैं। okay, that is the first thing, that is the second thing we can do. Now third thing, for constant frequency and different intensities. ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह इंटेंसिटी डाल दी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इंटेंसिटी मतलब क्या? तो कि इसका जो फोटोन डेंसिटी है ना, ये फोटोन डेंसिटी है, इसको मैं बड़ा घटा सकता हूँ। अभी कितना है? 0.5 है, तो ये सब कुछ ऐसे ही रहने दो अभी। ठीक है, इसको मैं फिर से 0 वोल्ट पे कर दूँ, और इसको मैं पर्टिकुलर जैसे फोटोन डेंसिटी 0 कर दूँ। ठीक है, तो फोटोन डेंसिटी 0 कर दिया, तो आइडियली एकदम से 0 तो नहीं हुआ, बिकॉज इट इज 0.01, क्योंकि 0 कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, राइट? तो देयर हैज टू बी सम वैल्यू। तो मैंने मिनिमम वैल्यू इस मतलब ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसकी जो लिमिट के हिसाब से इसमें रखा हुआ है 0.01। तो 0.01 फोटोन डेंसिटी के लिए इफ यू हैव 0 पोटेंशियल है आपका, तो करंट कितना है? 0.5 पिको एम्पियर। अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ, 0.1 करता हूँ। ठीक है, लेट मी डू इट टू 0.1। हाँ, तो 0.1 फोटोन डेंसिटी के लिए आपका जो करंट है वो अभी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या किया? इंटेंसिटी चेंज किया। आपको क्या करना है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी पहले दिखाया था कि 0.5 पे मैंने रख दिया इसको, चलो इसको 0.5 पे रख दिया। अब इसी 0.5 पे आपको ये वोल्टेज बढ़ाते जाना है और इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो उसकी एक कर्व मिलेगी आपको, तो वो हो गया इंटेंसिटी 1 जो भी आपका है। इंटेंसिटी 2, तो उसके लिए आपने चलो फोटोन डेंसिटी और बढ़ा दिया, 0.5 की जगह कर दिया आपने चलो 0.7 फॉर एग्जांपल। 0.7 के लिए पूरा फिर से वही स्टडी करेंगे कि वोल्टेज को 0.1 के स्टेप में बढ़ाते जाओ और उसकी जो करंट है उसको नोट करते जाओ, तो आपको दूसरा कर्व मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर इंटेंसिटी 3,
तो ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं पूरा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, तो व्हाट आई विल डू नाउ, तो आई एम श्योर अभी आपको पूरा समझ में तो आ गया है कि एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है। अभी मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि एक रीडिंग कैसे लेना है, एक पूरा, कि फॉर एग्जांपल ये जो फोटो करंट ये वाला लेते हैं, लेट अस से इसको हम लेते हैं, तो कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको अभी हम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक फ्रीक्वेंसी अभी चूज कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने लेट अस से यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम लेट से 600 नैनोमीटर, ठीक है। अब 600 नैनोमीटर के हिसाब से अभी पहले तो अच्छा ये देखो कि जब भी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो आपके मटेरियल में से कैन यू सी द फोटो इलेक्ट्रॉन्स और नॉट, पहले तो ये देखना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो कुछ है ही दिखाई नहीं दे रहा। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक टू बी ऑब्जर्व्ड। तो फॉर पर्टिकुलर मेटल आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए, तभी आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। अब ये इस पे तो नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स मुझे अपना जो वेवलेंथ है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ कम करना है तो दैट मीन्स क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है हमें, है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री हो पाएंगे। तो लेट अस से कि मैं 550 कर देता हूँ, ठीक है। तो वी सी दैट 550 पे भी नहीं हो रहा है, तो लेट अस टेक अवर ओरिजिनल जो भी था 500, हाँ तो 500 पे अभी दिख रहा है। अभी आप हो सकता है इसके बीच में भी ट्राई करो कि 525 है, 530 पे कहीं पे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे आपको दूसरा ही दिखाता हूँ, ठीक है। 400 फॉर एग्जांपल, 400 नैनोमीटर पे मैं आपको इसका डेटा कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस ग्राफ, कौन सा, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड रिवर्स पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम करते हैं फॉर द गिवन पर्टिकुलर सेटअप। तो ये सेटअप में आपको जैसे मैंने बताया करंट यहाँ से मेजर करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से मेजर करेंगे, और विजुअली तो हमको दिख ही रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो करंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। हाउएवर हम इसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे कि भाई ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमको यहाँ देखना है कि व्हाट इज अ रीडिंग इन द मीटर, है ना। और बिकॉज दिस इज द वर्चुअल एक्सपेरिमेंट, इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, तो और यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको 0.0101 ऐसे फ्लक्चुएट होता होगा और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पास भी नहीं होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत वो एरर रहेगा इसमें, ऑलराइट। तो हमें फॉलो किसको करना है, इसको फॉलो करना है, एमीटर को, ऑलराइट। अभी मैं आपको एक रीडिंग लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट में इंटेंसिटी कर देता हूँ, इसको मैंने रख दिया 0.5 पे, वापस रख देता हूँ हाफ, ठीक है। फोटोन डेंसिटी को मैंने कर दिया 0.5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो व्हाट वी आर मेजरिंग फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड रिवर्स पोटेंशियल फॉर ए कांस्टेंट इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया हमने, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ये 0.5 कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दो, ऑलराइट। अभी इनको चेंज क्या करना है, तो पहले तो ये फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें एक पूरा कर्व निकालना है। कौन सा कर्व निकालना है, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज, ऑलराइट। तो पहले तो मैं इसको 0 से ही स्टार्ट करूंगा, मतलब लेट्स से कि 0, मैंने 0 कर दिया, अभी कुछ नहीं डाला। तो ये पर्टिकुलर 0 वोल्ट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर करंट, तो इसको मुझे रिकॉर्ड करना है, ये डेटा जो है रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड डेटा पॉइंट दिया हुआ है, बटन दिया है, तो इसको आप सिंपली क्लिक कीजिए, ठीक है। मैंने ये क्लिक कर दिया। अब इसको देखना है तो कहाँ देगा, शो डेटा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो रिकॉर्ड हो गया, वोल्टेज इतना था, ठीक है। अब देखो 0 वोल्ट किया था, लेकिन इट विल, जैसे मैंने बताया, थोड़ा बहुत आपको ये दिखेगा, लेकिन हम इसको ही फॉलो करेंगे जो टेबल में आपका जो ये मिल रहा है इसको, ठीक है। 7.99 पिको एम्पियर
एंड फ्रीक्वेंसी जो है अपना अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इतना है, वेवलेंथ इतना है। ठीक है, इसको बाद में मैं दिखाता हूँ कैसे इसको एक्सपोर्ट करना है और फिर इससे ग्राफ भी प्लॉट होगा। ओके, तो ये एक डेटा पॉइंट हो गया ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दूसरा डेटा पॉइंट लेना है तो अभी मैं इसको 0.1 वोल्ट इसको भी रिकॉर्ड कर दियो, रिकॉर्ड डेटा पॉइंट, और इसमें देखो आ गया कि नहीं। ठीक है, दोनों आ गए, 0 वोल्ट पे भी आ गया, 0.1 वोल्ट पे भी आ गया। तो हमें ये चीजें तो वैसे भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ठीक है, हमें मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या ये दोनों है, ये वोल्टेज एंड करंट, यही मेन हमारा मतलब ये है इसमें डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसे करते जाए 0.1 के बाद 0.2 इसको भी रिकॉर्ड कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे 0.3 और इसको भी रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, फिर 0.4, तो आपने जब ये वैल्यू एंटर किया तो थोड़ा मतलब वेट कर, एटलीस्ट 4-5 सेकंड, उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए डेटा पॉइंट को। ठीक है, अभी होगा 0.5, 0.5 पे हुआ। तो अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग स्लोड डाउन, और करंट भी आपका कम हो रहा है, ये जो करंट है उसका वैल्यू भी कम हो रहा है। अभी और बढ़ाते हैं 0.6। ठीक है, अभी भी थोड़ा करंट अभी भी आ रहा है। तो रिकॉर्ड डेटा पॉइंट अभी होगा 0.7। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो सारे रीडिंग्स आ रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, हाँ 6, 7, तो सब डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। 0.8, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अभी हम करेंगे 0.9। हाँ तो देखो अभी ऑलमोस्ट करंट इज 0। अब यहाँ पे देख सकेंगे इट इज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट क्रॉसिंग द पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट क्रॉसिंग द पोटेंशियल। तो ये रिकॉर्ड कर दो और बस यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो अभी देखो डेटा हमारा जो है आ गया, डेटा 0.9 वोल्ट पे पूरा स्टॉप हो रहा है। ठीक है, हाँ अब ये भी हो सकता है कि 0.8 और 9 के बीच में ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 0.29 से सीधा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो कुछ तो वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी इतना उसमें मतलब बारीकी में नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, वी आर जस्ट मूविंग इन द स्टेप ऑफ 0.1, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं, जो वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज सोर्स है, इसका जो लिस्ट काउंट है, मतलब यहाँ पे मैं आई कैन नॉट पुट अप लाइक 0.85 यहाँ पे नहीं होगा, है ना, जैसे कि मैं लेट मी ट्राई 85, तो वो सॉरी हो रहा है। तो देयर इज आई थिंक लिमिट फॉर 2, इट्स नॉट गोइंग फॉर 858, हाँ, सो देयर इज अ लिमिट फॉर 0.01। तो हमको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको अगर करना है तो आप कर भी सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट जस्ट इंक्रीज इन द स्टेप ऑफ 0.1, 0.2, 0.3। 3 डिजिट में इसका ये नहीं हो रहा है कि अगर मुझे इसमें भी एक्यूरेसी लानी है कि 8-5 की जगह मुझे देखना है कि 8-4-5, तो 5 मैं प्रेस कर रहा हूँ अभी, लेकिन नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो 2 डिजिट तक ये कर पाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। एनीवेज, तो हमने जो अभी डेटा निकाला है ये, ठीक है, तो इसको अभी हमको, तो ये क्या हुआ, दिस इज एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 के ऊपर एक कर्व पूरा मिल गया। तो उसको पहले हमें डेटा को एक्सपोर्ट करना है, तो शो डेटा करो पहले। ठीक है, देन ये जो लिखा है डाउनलोड CSV, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल मिलेगा। तो ये जो फाइल है, तो इसके ऊपर मैं लिखता हूं कि F इक्वल टू हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा मैं अभी इसको क्या करता हूँ कि उसकी जो वेवलेंथ है उसके हिसाब से मैं लिखता हूँ। तो मैं अभी 400 नैनोमीटर, क्योंकि इतनी नैनोमीटर ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो वो जो ग्राफ है इसको मैं अभी यहाँ पे सेव कर रहा हूँ।
ठीक है, अभी क्या करना है तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको ओपन कीजिए। ठीक है, उसमें ब्लैंक वर्कबुक पहले आप ओपन कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, वो वाली जो फाइल है उसको ओपन करना है एक्सेल बुक में। तो ओपन कीजिए, ओपन पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने अभी हमने सेव किया था 400 नैनोमीटर ये वाली फाइल .csv फॉर्मेट में, इसको ओपन किया मैंने। तो इसको मैंने ओपन किया, सो पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। देखिए कौन सा मेटल था, कितनी वोल्टेज पे कितनी करंट थी, और उसकी फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो कांस्टेंट रहने ही वाला है इधर, तो वो तो पूरा यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट कैसे करना है, तो पहले तो इसमें देख लिए कि कैसे ग्राफ प्लॉट किया। फोटो करंट वाई एक्सिस पे है और आपका पोटेंशियल है वो एक्स एक्सिस पे है। तो आपकी जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है। तो जनरली एक्सेल में जैसे जब भी आप प्लॉट करते हैं तो आपको क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करो और इसमें आपको इंसर्ट करना है आपकी जो ग्राफ है। ठीक है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है ग्राफ की, ये सब ग्राफ्स है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत सारी ग्राफ है। तो उसमें आपको स्कैटर प्लॉट लेना है, ये वाला, इसके ऊपर लिखा है स्कैटर। तो मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, पूरा ग्राफ आ गया हमारा, है ना, ये जो ग्राफ है अपना ये वाला। तो ये पूरा ग्राफ हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी जैसे ये तो 0.1 के डिफरेंस में किया है, अगर आप और बारीकी भी करना है तो 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 बीच में जो हाफ मतलब मिडल पॉइंट्स है वो भी सब ले सकते हैं, तो और भी अच्छे से आपका कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्व एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ओके, सो ये जो ग्राफ है तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये वाली फ्रीक्वेंसी 7.5 इंटू 10⁻14। ठीक है, ये जो ग्राफ है एक फ्रीक्वेंसी पे होगा। अभी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे करना है हमें, तो अभी मैं इसको क्या करूंगा कि मैं उसको कम करूंगा इससे। तो मैंने ले लिया 350 नैनोमीटर। ठीक है, इसको अभी क्लोज कर दो। अच्छा, ये डेटा तो हमने पूरा ले लिया है ना, तो अभी क्या करना है, लेट मी जस्ट सी, क्लियर डेटा। ठीक है, ऑप्शंस में ये दिया हुआ क्लियर डेटा, तो ये पूरा क्लियर कर दिया हमने। ठीक है, अभी शो डेटा में 0, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा एम्प्टी हो गया। ठीक है, अभी मैंने ये चेंज कर दिया वेवलेंथ यहाँ पे। ऑलराइट, और हम क्या कर रहे हैं अभी, ये वाला फॉलो कर रहे हैं कांस्टेंट इंटेंसिटी। तो दैट मींस इसको नहीं हम छेड़ेंगे, ये ऐसा ही रहेगा, 0.5 पे ही रखना है। ऑलराइट, हमको सिर्फ चेंज क्या करना है, तो दूसरी, पहली फ्रीक्वेंसी पे किया हमने, अभी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे करेंगे, इसको वापस 0 पे रख दो। ठीक है, इसको मैंने 0 पे रख दिया। और ये जो ग्राफ है जैसे अभी हमने किया, उसको फिर से इसको हमको मेजर करना है। तो 8 पिको एम्पियर उसका आ रहा है अभी, तो वो इसको भी रिकॉर्ड कर लो पहले 0 वोल्ट पे। ठीक है, ये 0 वोल्ट पे जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर यहाँ पे 0.1 मैंने बढ़ाया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर यहाँ पे किया 0.2, रिकॉर्ड कर लिया। 0.3, इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो ये हो गए सारे रीडिंग्स आपके। ऑलराइट, तो मैं अभी पूरा नहीं कर रहा हूँ, अभी इसको फिर से कंटिन्यू करना है, मतलब कि पूरा जाना है, कहाँ तक जाना है, until you see that there is no current flowing through the circuit। आपका फोटो करंट ये जो है, इसको ये जब 0 हो जाएगा तब तक आपको ये वोल्टेज बढ़ाते जाना है। ऑलराइट, और ये जो डेटा है इसको यहाँ से आपको डाउनलोड CSV करो, और उसको फिर क्या नाम देना है आपने, जो भी ये, जैसे कि मैंने 350 नैनोमीटर लिखा है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं, आपके ऊपर है। फाइल का नाम उस हिसाब से रखना कि आपको पता चले कि कौन सी फाइल कौन सी है, क्योंकि देखो आप जब फोल्डर में जाएंगे, लेट मी शो यू कि जो फोल्डर है मैंने जो सेव किया हुआ है, तो ठीक है, अब ये फोल्डर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फोल्डर में, तो ये तो सिर्फ एक ही फाइल हुई ऐसी। अब ऐसी बहुत सारी फाइल यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारी करनी है।
तो वो उसको आप नाम ऐसे रखना है कि उस हिसाब से आपको समझ में आए कि ये कौन सा पर्टिकुलर फाइल का डेटा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अरे भाई बोलो। यस सर। हाँ, तो वी शुड एक्चुअली फॉलो ऑल दिस डिटेल्स। जैसे ये जो है इसको हम फॉलो कर रहे हैं अभी। ठीक है, आज के दिन इतना ही अभी करना है। 10 कितना हुआ, 10:30, अभी तो बहुत टाइम, तो हमें यही करना है हमें। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि लेट मी जस्ट क्लोज दिस। तो ये जो अभी इसका जो भी डेटा मिलेगा है ना, तो ये जो डेटा मिलेगा उसको भी आप डाउनलोड कर लो जैसे हमने अभी किया था, और उसको जब ओपन करेंगे तो ये ऐसा एक पूरा फाइल, दूसरा फाइल निकलेगा, है ना। लेट मी जस्ट डू इट नाउ। ये वाला है, तो इसको मैं 0.4 रिकॉर्ड डेटा पॉइंट, 0.5 रिकॉर्ड डेटा पॉइंट, फिर 0.6 रिकॉर्ड डेटा पॉइंट। तो ऐसे आप करते जाइए। ये तब तक करना है जब तक आपका करंट 0 ना हो जाए। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे थोड़ा जंप लगा रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एवरीथिंग, आपको बस दिखाने के लिए। हाँ, 1.4 पे 0 हो गया, तो दैट मीन्स उससे थोड़ा कम कर लेते हैं, 1.2, 1.22 पे आ रहा है, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर 1.3, हाँ, तो 1.3 पे 0 हो गया, तो लेट मी जस्ट सी द डेटा। अच्छा, 1.3 का डेटा नहीं आया इसमें, तो 1.3 का रिकॉर्ड द डेटा पॉइंट। हाँ, हो गया। अब ये जो पूरा डेटा है इसको डाउनलोड कीजिए। अब इसको मैं क्या करूंगा, 350 नैनोमीटर कर लूंगा, 350 नैनोमीटर, सेव एज। ठीक है, अभी उसी फाइल में जाइए, इसी फाइल में ओपन का बटन है, फाइल ओपन, उसमें आपको 350 नैनोमीटर ओपन करना है। ठीक है, अभी ये दूसरी फाइल निकलेगी। ठीक है, ये पूरा फाइल चेंज हो जाएगा। अभी आपको करना कुछ नहीं, आपको क्या करना है, बस ये जो ये अपना जो ये जो डेटा है पूरा, देखो ये तो वैसे भी हमने सेम ही रखा है जो पहले वाला था, लेकिन चलो फिर भी कॉपी कर लेते हैं। ये डेटा जो है इसको मैंने कॉपी किया, और यहीं पे मैं इसको भी प्लॉट कर देता हूँ इसके बाजू में। यहीं पे मैं प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब देखो ये वोल्टेज जो है दोनों, तो वो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग उसको वही उसको फॉलो, एक ही क्या बोलते हैं, मतलब वी आर कीपिंग द वैल्यू सेम। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। देखो 0.799 है। अच्छा, हाँ, ये इसमें एक जंप हुआ क्योंकि मैंने लिया नहीं है इसलिए। अब इसको देखो तो 0.902 है, ये 0.9, ये 1 का डेटा है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा, 0.199, 0.201, 0.301, 0.299। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसका ग्राफ इसी पे सेम प्लॉट करना है, इसी के ऊपर ये भी प्लॉट करना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो है इसको ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसी के ऊपर आपको ये भी प्लॉट करना है। तो इसको पहले ये कॉपी कर लेता हूँ, ये 0 है, तो इसको मैंने कॉपी किया। अभी मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल मतलब प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट किया। तो ये तीनों मतलब कि ये दोनों ग्राफ है एक ही इसमें प्लॉट होंगे। इसको इसमें साइड पे कर देता हूँ। ये जो हमने सिलेक्शन अभी यहाँ पे किया हुआ है, तो इसको हमको प्लॉट करनी है। तो उसके लिए ये जो है इसको सिलेक्ट किया और उसी का स्कैटर्ड प्लॉट,
हाँ, तो ये देखो एक ही प्लॉट में दोनों हमारे ग्राफ हो गई। ठीक है, ये इसमें देखो ये एक ही ग्राफ है, इसमें दोनों आ गई हमारे, क्योंकि वैल्यू जो है वोल्टेज का दोनों हम लोग एक ही मतलब स्टेप में चेंज कर रहे हैं, 0.1 के स्टेप में ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये येलो और ब्लू वाला कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे देख के आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, येलो सॉरी, हाँ ब्लू और जो आपका ऑरेंज है, तो ये दोनों पॉइंट है इसके, ये है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी का है और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी तो ये जैसे हमने यहाँ से ये कॉपी, तो ये आपको लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 8.5 इंटू 10⁻14 पे है, ये 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के लिए डेटा है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो आप थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाए, देखिए कि कैसे करना है। ऑलराइट, तो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आया है कैसे करना है। ओके, तो ये हो गई दूसरी फ्रीक्वेंसी के, मतलब दो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ऐसा किया है। तो अभी आज हम क्या करेंगे कि इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है, अभी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो इसी वीडियो हमारी कॉल जो है इसकी चैट में मैं डाल रहा हूँ अभी, तो इसी को हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, सबको करना है, और सबका डेटा देखो इसमें जो है, जैसे मैंने बताया ना कि ये वैल्यूज थोड़ी थोड़ी चेंज रहेगी, ये रहा, हाँ, ये वैल्यूज जो है थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, तो कॉपी नहीं करना है, हमें अपने आप करना है, खुद करना है। वोल्टेज वर्सेस करंट के ग्राफ एक ही ग्राफ पे प्लॉट करनी है। ऑलराइट, और सबके डेटा जो है थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। ऑफ कोर्स उसका जो बिहेवियर तो है सबका सेम ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डेटा पॉइंट्स है तो वो तो मुझे दिखा जाएगा यहाँ से कि क्या वैल्यूज है, तो कॉपी नहीं करना है हमें। ऑलराइट, तो इसको आपको अभी करना है, और ये जो लिंक है अभी मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये मजाक चल रहा है क्या? देखो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया लिंक, जो लिंक है उसको। ठीक है, अब इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ये ओपन हो रहा है उसमें जाके आपको अच्छा ये भी मैं डाल देता, ये जो दूसरा जो लिंक है, ठीक है, ये लिंक मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि इसमें से आपको थ्योरी और वो सब पता चलेगा। ठीक है, मतलब हम लोग जो अभी फॉलो करें इसको फॉलो करें, ये वाली जो ग्राफ है कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली जो ग्राफ है, तो इसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसका भी मैं अभी लिंक दे रहा हूँ आपको। अच्छा हाँ, तो इसमें देखो अभी तो हम देखो अब सबको एक ही करना है, सोडियम मेटल पे ही करना है, अलग अलग वो करने की अभी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आज के दिन पहला दिन है, जस्ट गो विद द इजी स्टेप। मे बी पॉसिबल होगा कल, अभी मुझे पता नहीं कल किसकी क्लास है, पर अभी तो हम इसको ही फॉलो करते हैं। ठीक है, सोडियम को ही रखना है, ऐसे ही रखना है, और इसको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके चेंज करते हैं, ऑप्शंस में जाएंगे, मेटल्स है, मेटल्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो मेटल्स में बहुत सारे मेटल है, लेकिन ऐसे रैंडमली कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो क्या होगा, हर एक मेटल के लिए अलग अलग रेंज है ना, हर एक मेटल का रेंज अलग अलग है, और सोडियम हमने इसीलिए चूज किया हुआ है कि इसमें आपको वैरायटी ज्यादा मिलेगी, बिकॉज ऑफ जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से। कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ गोल्ड, है ना, मैंने शायद लेट्स से कि मैंने गोल्ड ले लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। अभी देखो गोल्ड में क्या होने वाला है, तुम कितना भी ये चेंज करो कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ये फ्रीक्वेंसी कितना भी, इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ, देखो फोटोन डेंसिटी मैक्सिमम, अब ये चेंज कितना भी करो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। देखो मैं सब चेंज कर रहा हूँ, अब ऑब्वियस है कि हायर सॉरी हाँ हायर वेवलेंथ पे कुछ नहीं आ रहा, तो लोअर वेवलेंथ पे जाना पड़ेगा। तो कहाँ मिलेगा, एकदम बहुत ही कम वेवलेंथ पे जाएंगे तब मिलेगा।
हाँ देखो अभी बहुत ही ये ऑलमोस्ट कितना कम 233 नैनोमीटर, तो फ्रीक्वेंसी कितना बहुत ज्यादा हो गया है ये 10⁻15 हर्ट्ज में चला गया है, तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है ये। मतलब ठीक है ये भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ये नहीं है इसमें, पर मेरा कहने का मतलब है जब तक मतलब विजिबल रेंज में करते हैं तो दैट इज गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड। पहले इसको ठीक से बाकी सब चीजों को ढंग से हम समझते हैं, बाकी जो है एक्सपेरिमेंटेशन है वो बाद में करेंगे, कुछ अलग अलग हमें करना है तो अभी हम करेंगे सोडियम के ऊपर ही, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर हम ये करेंगे। और अच्छा हाँ, आपका अभी आपको करना क्या है कि हमने जैसे देखा था आई थिंक 500 नैनोमीटर पे वो दिखा रहा था 500 अप टू 500 नैनोमीटर आपको ये मिल रहा है, इसका क्या बोलते हैं फोटो करंट, है ना। उसके ऊपर शायद नहीं मिल रहा है। हाँ 550 पे गए तो नहीं मिला, तो हमको क्या करना है 500 से शुरू करना है, ठीक है। 500 से शुरू करो और 50 नैनोमीटर कम करते जाना है, ठीक है। तो पहले 500 नैनोमीटर पे पूरा ग्राफ निकालो, फिर 450 नैनोमीटर पे पूरा ग्राफ निकालो, फिर 400 नैनोमीटर 350 पे पूरा ग्राफ निकालो, समझ रहे हो आप। तो आपको ऐसे कहाँ तक करनी है आपको, लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर, टेबल ही बना देता हूँ। तो 500 फिर हो जाएगा 450, फिर हो जाएगा 400, फिर हो जाएगा 350, फिर हो जाएगा 300, और एटलीस्ट 5, 1 2 3 4 5 हो गए। हाँ तो 5 अलग अलग इंटेंसिटी के सॉरी वेवलेंथ के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा ये नैनोमीटर में मैंने लिखा है, आपको है ना फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखनी है, ठीक है। वैसे तो एक ही मीनिंग है दोनों का, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा C/λ करेंगे तो, ठीक है। तो हमें ये 5 अलग अलग वेवलेंथ के लिए पूरा I वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए कि लैम्बडा इक्वल टू 500 नैनोमीटर के लिए पूरा IV कर्व मिलेगा एक, फिर लैम्बडा इक्वल टू 450 नैनोमीटर के लिए दूसरा IV कर्व मिलेगा, फिर लैम्बडा इक्वल 400 नैनोमीटर के लिए दूसरा तीसरा IV कर्व, ऐसे ही ये दोनों के लिए। और चारों पांचों को आपको क्या करना है एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना, ये जो अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है ना। और हर एक का जो ये कलर है तो ये आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए कि ये कौन सी वेवलेंथ का है, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत ये भी आपको सीखना पड़ेगा, इसमें आपको पता ही कुछ लोगों को पता होगा ही, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो वो पता कर लीजिए। इसको भी मुझे यहाँ इंडिकेट करना है कि ये कौन सी वेवलेंथ के लिए कर्व है, तो वो उसको आप लेजेंड डेटा में जाएंगे तो उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अच्छा इसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगा बिकॉज क्योंकि ये मैं जो मेरा जो है ये अभी मैकबुक है, एप्पल का है, तो अलग अलग लैपटॉप है, तो अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट में अलग अलग तरीके से हो सकता है ये, ठीक है। तो मैं अभी इसको कुछ दिखा नहीं रहा हूँ कैसे होता है, आप अपने आप पहचानिए कैसे करना है इसको, है ना। जनरली ये लीजेंड डेटा बोलते हैं इसको, तो इसका जो ये है ये डेटा लेबल्स भी ऐड होगा, ये भी कर सकते, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी कर होगी तो आप लोग शुरू कर दीजिए अभी, ठीक है। आपको ये अभी करना है सब। और कितने लोग हैं अभी हमारे क्लास में, अप्रोक्सीमेटली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 लोग हैं। सो आई कैन सी 28 स्टूडेंट्स वी हैव राइट नाउ, तो सबको करना है। अच्छा कुछ और मटेरियल्स भी है, तो वो बस रेफरेंस के लिए आपको अगर चाहिए तो मैं आपको दे सकता, लेकिन ज़्यादा फिर मटेरियल भी वो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारा ये भी नहीं करना है। आई थिंक लेट अस जस्ट स्किप दिस 2 थिंग्स, ये जो दोनों चीज़ है। एक तो आपको पहला जो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा जो है इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इसमें भी थ्योरी तो इसमें भी है, ये रिसोर्सेज में जाएंगे तो
तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड लिखा हुआ है ना, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब ये आपका पूरा थ्योरी, यहाँ पे हमने जो अभी ये पूरा हिस्ट्री इसका देखा, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ से बैकग्राउंड में, ठीक है। इसमें और दूसरा जो आपको लिंक दिया, ये अमृता लैब का जो लिंक है, इसमें भी थ्योरी दिया है। अच्छा, इसमें भी सिमुलेटर है, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी तो इसको नहीं देगा, हमें इसको ही फॉलो करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छा ही मैंने ये इतना सर्वे किया है कि ये अच्छा इसमें ऑप्शन है रिकॉर्ड डेटा पॉइंट वाला, तो इससे आप अच्छे से डेटा भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और उसको प्लॉट भी कर पाएंगे एक्सेल में, ये जैसे किया हमने। तो हम लोग अभी इसको फॉलो करेंगे, ये वाली जो कर्व है इसको, फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, कीपिंग योर इंटेंसिटी कांस्टेंट। सर जी इस ये जैसे 500 नैनोमीटर पे किया मैंने, तो इसमें मुझे 4 ही डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो बाकी हाँ, तो सारे कोई बात नहीं, जो और भी डेटा पॉइंट्स है वो, क्योंकि देखो आप ये जो है, ये जैसे आप चेंज करते जाएंगे ना, तो वो वैल्यूज तो सबकी चेंज होगी, क्योंकि अलग। इंक्रीमेंट्स तो 0.1 वोल्ट का ही रखना है ना, मैं ये पूछना चाहता हाँ हाँ, उतना ही रखना है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप 0.05 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम जो है मतलब 0.1 तो हमें फॉलो ही करना है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि चलो 0.2, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9 ऐसे एकदम से कुछ सडन ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, ये वोल्टेज वर्सेस कर्व, करंट वर्सेस वोल्टेज का कर्व है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इसको ही चेंज कर सकते हैं अच्छे से, तो इसको हमें अच्छे से मतलब वो रखना है 0.1 की इंक्रीमेंट। तो ऐसा होगा कि कुछ वेवलेंथ जो है उसमें आपकी डेटा पॉइंट्स बहुत ही कम मिले, और कुछ वेवलेंथ में आपकी डेटा पॉइंट्स ज़्यादा मिले, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, हूँ। ओके ठीक है। और एक बार आपका ये हो जाए, लेटर से कि आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया और पूरा जैसे कि अच्छे से होना चाहिए, ये जैसे मैंने ये जो दिखाया यहाँ पे, तो ये 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए है, मतलब कि 2 वेवलेंथ के लिए है, तो आपको ये पांचों की 5 वेवलेंथ को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, और उसका फिर क्या करना है, मुझे एक ये जो है इसका स्क्रीनशॉट या जो भी सेव एज पिक्चर होता है तो वो करो, जो करना है, और यहाँ पे ये चैट बॉक्स में इसको डालो पहले, ताकि मुझे पता चले, ये अपना चैट बॉक्स में अटैच कर दो बस। एटलीस्ट मुझे 5 लोगों का चाहिए, ठीक है, 5 लोगों को अभी ये करना है, एटलीस्ट 5 पीपल। वेवलेंथ सर कितनी लेनी है, 500 से 250? 300, 500 टू 350 के डिफरेंस में लेनी है, ओके ठीक है। 500, फिर 450, फिर 400, फिर 350 और लास्ट में 300 नैनोमीटर। सर ये फोटोन डेंसिटी कितनी रखनी है? 0.5? फोटोन डेंसिटी 0.5 ही रखनी है कांस्टेंट अभी, ठीक। ठीक है, उसको 0.5 पे रख देना।
सर ये एक्स और वाई एक्सिस क्या है सर? एक्स और वाई एक्सिस ये इसमें दिया हुआ है ना, एक्स एक्सिस पे रिवर्स पोटेंशियल है, वाई एक्सिस पे फोटो करंट है।
सर हाँ जी, सेकेंड टाइम परफॉर्म करते वक्त डेंसिटी चेंज करनी है कि नहीं? नहीं डेंसिटी कांस्टेंट रखनी है। जैसे मैंने बताया ना, ये डेंसिटी कांस्टेंट मतलब क्या, इंटेंसिटी कांस्टेंट है आपका। वेवलेंथ ठीक केवल है, चेंज करनी है। हाँ, वी हम लोग सिर्फ वेवलेंथ चेंज करते हैं, वेवलेंथ माने कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, एंड वी आर कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट। ठीक। सर वो डाल दिया है सर चैट बॉक्स पे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
ओके सो अच्छा, तो सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे. सो Siddharth has plotted all the graphs. Now only thing is that what we need to do is that जो पूरा ये जो लीजेंड एंट्री है, ठीक है, इसको मतलब लीजेंड एंट्री बोलते हैं कि जो भी पर्टिकुलर कर्व है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी का है, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको बस टाइप कर देनी है. अब वो कैसे होती है वो आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो अदरवाइज तो बाकी सब चीज़ें ठीक है. ठीक है, उन्होंने जैसे ये सब पूरा प्लॉट किया हुआ है, और ये फ्रीक्वेंसी तो जो पहली होगी आई थिंक वही उन्होंने यहाँ पे रखी है. तो मेन जो है ये करंट और वोल्टेज का कर्व है. अभी आपको बस ये देखना है कि आपकी जो क्या बोलते हैं, जो एंट्री है वो आपको शायद रिवर्स करनी पड़ेगी. क्या नाम है, सिद्धार्थ, कि आपने जो ये प्लॉट किया है ना, तो ये आई थिंक आपका वोल्टेज होगा ये मेरे हिसाब से, या तो फिर क्योंकि ये 20 तक जा रहा है ना यहाँ पे, तो 20 तक तो इसका वैल्यू जो है वो इसका होगा, करंट का वैल्यू होगा. और हमें जो ग्राफ प्लॉटिंग है, ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज है वो हमें एक्स एक्सिस पे रखनी है और करंट है वो वाई एक्सिस पे रखनी है. तो आप बस उसको थोड़ा रिवर्स कर दीजिएगा. इसमें ऑप्शन होगा, आप जैसे राइट क्लिक करेंगे ना तो स्वैप एंट्रीज का ऑप्शन होगा, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे. ठीक है, तो कर्व का जो नेचर है तो मोरलेस ऐसा ही रहेगा आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए. तो ऐसे होगा कि कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए वो एकदम से तुरंत ही जीरो हो जाएगा, कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए वो थोड़ा टाइम लगेगा जीरो होने में, कुछ को कुछ ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा. ठीक है, तो वो मोस्टली कब होगा कि जब आपकी एंट्रीज ज्यादा होता, जो एनर्जी जो सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, उस कर्व के लिए होगा कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है थोड़ा ज्यादा आपको देना पड़ेगा उसको करंट को जीरो करने के लिए. ऑलराइट, तो ऐसे ही प्लॉट करना है सबको ना. तो आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ. बस इसको आपको मॉडिफाई करना है जैसे मैंने वो बताया. जैसे कि ये चार्ट मैंने, मेरे पास जो अभी ये चार्ट है, तो मैं भी अभी थोड़ा आई एम फिगरिंग आउट इन माय पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वेयर कैन आई एक्चुअली चेंज. जैसे यहाँ पे ये लीजेंड तो हो गया, मेरा एंट्री तो हो चुका है, लेकिन उसकी मुझे बस नाम चेंज करनी है. तो अगर कुछ ऑप्शन है तो आई शुड एक्चुअली, एक ही ऑप्शन आ रहा है पर उसका कुछ ये नहीं है. जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे उसको अगर मुझे चेंज करना है तो क्या किया जाए, उसके लिए थोड़ा ये करना पड़ेगा, है ना. तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा देखिए. ठीक है, इसका एक्सिस टाइटल भी होना चाहिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है. तो दिस विल बी योर स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट, और ये जो है आपका करंट है, फोटो करंट, that is in the picoamperes. Okay, that is photo current versus stopping potential. इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख दो, वो लिखना चाहिए. तो ये सब थोड़ी टेक्निकलिटीज है, अभी थोड़ा ये सब सीखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन. तो जैसे इसको भी, ये जो एक्सिस है इसको भी थोड़ा बोल्ड कर दो, उसकी भी थोड़ी साइज बढ़ा दो, है ना, तो वो अच्छे से दिखना चाहिए. और वो सब यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो ये 14, तो ये भी 14, दोनों इसका दोनों का साइज सेम होना चाहिए. एक्सिस जो है इसका जी जो लेजेंड एंट्री एक्सिस टाइटल है वो भी दोनों सेम होने चाहिए. ठीक है, और हाँ ये भी है, इसको भी थोड़ा ये कर दो तो थोड़ा दिखना चाहिए, है ना. तो ये सब छोटा मोटा चीज है वो देख. हाँ, ये यहाँ पे चार्ट टाइटल आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यही लिखना है, ये जो है अपना. हाँ, ये जो है
और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट। तो आपको मतलब टाइटल क्या डालना है, फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल एट कांस्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, तभी मैं दिखाई देता हूँ ये जो टाइटल है आपका, दिस शुड बी फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ मतलब एक प्रॉपर ये होना चाहिए, है ना। यहाँ पे पूरी लीजेंड एंट्री है, पूरी यहाँ पे सब होनी चाहिए। ये जो है मान लो कि ये है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये है 8.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, 9.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, जो भी है पूरा लीजेंड का एंट्री। ठीक है, या तो यहाँ पे रख लो या तो नीचे रख लो, जैसे आपने सिद्धार्थ ने जो ये यहाँ पे उन्होंने नीचे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये भी चलेगा, बट यहाँ पे ये होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि ये जो ग्राफ है वो इतना हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए है, ये जो ग्राफ है इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए है, ये ग्राफ ऐसे है। यहाँ पे सब लीजेंड एंट्री होनी चाहिए, और ये बाकी सब चार्ट टाइटल है, एक्सिस टाइटल है। ठीक है, तो ऐसे एक अच्छे से ये पूरा होना चाहिए। अब लेट्स से कि अगर ये मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इसमें, हाँ कुछ लोगों ने अभी भेजा हुआ है, हाँ मैंने अभी ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ऐसी एक फॉर्मेटिंग में आप अपने हिसाब से देखना, अगर हो पाए तो अच्छा है। श्रीजीता दास, ओके, आपने भी भेजा है। आदित्य राव, भव्या जयमन, ओके आपने, ओके एक्सेल शीट पूरा डाला हुआ है। ठीक है, तो जो भी है आप हाँ, तो आपका भी जैसे ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मतलब बिहेवियर तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया सबका सिमिलर ही रहेगा, और ये सब चीजें थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेना है आपको। हाँ देखो, अब ये इन्होंने किया हुआ है आदित्य ने कि ज्यादा सब कुछ जैसे, तो ये इसमें है, तो ये करंट पिक जो है उसका एंट्री निकाल दे सकते हैं आप। तो सिर्फ 500 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 350 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, चारों के चारों ग्राफ है, एक ही उसमें है। ठीक है, तो इसको बस टाइटल है वो सब डाल दीजिएगा, और बाकी जो चीजें हैं उसको अच्छे से, जैसे मैंने ये अभी एक अपना यहाँ पे मैंने मेरा अभी दिख नहीं रहा, तो इसको एक बार ओपन करके आप ये कर लेना, थोड़ा फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। ओके, आई थिंक सो दिस शुड बी इनफ फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट। एंड बाकी सब लोग जो भी अभी कर रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और ये जो अभी रिजल्ट मिले हैं आपको, ठीक है, ये जो भी ग्राफ मिले हैं, ये एक्सेल शीट है पूरा, इसको अभी सेव कर दीजिए। और यहाँ पे जो आपका जो ये शीट है, ये शीट नंबर 1 है, तो उसको आप टाइटल दे दीजिए, आप आज का डेट डाल के जो भी है उसको टाइटल दे सकते हैं यहाँ पे। तो ताकि क्या होगा, कल दोबारा जब आप करेंगे तो ये प्लस साइन है दूसरा, उसमें नया शीट डाल के उसमें हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग दूसरा भाग देखेंगे, मतलब कि जो दूसरा पार्ट है ये वाला, तो कल ये हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो आई होप सबको समझ में आया है, एंड वी कैन डू दिस इन ऑनलाइन मोड लाइक दिस। जैसे आज का एग्जांपल ऐसे है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसी प्लेटफॉर्म पे हमने किया है। तो अभी पॉसिबल है कि बाकी एक्सपेरिमेंट्स हैं तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो अपने मुझे मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है
जैसे ये अमृता लैब का है, तो इसमें भी आप देख लेना, ये जो सिमुलेटर दिया हुआ है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे भी आपको मिलेगा कैसे कैसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरे भी बहुत सारे, ये भी एक है, ठीक है, लेकिन इसका मुझे ये नहीं मिला था, वर्चुअल लैब है वो तो। लेकिन बहुत सारी ऐसे आप जब इवन सिंपली गूगल करेंगे तो भी बहुत सारा मिलेगा। तो लेकिन मुझे ये सबसे बढ़िया लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं। ये एक ही मेटल पे आपने किया और सिर्फ एक ही क्या बोलते, एक ही ये कर्व के लिए हमने किया। अब यही चीज हम दूसरे कर्व के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और मेटल भी हम लोग बदल सकते हैं, अलग अलग मेटल को। तो वी विल सी टुमारो, अगर मेरा ही लैब है तो मैं ही कंटिन्यू करूंगा, अगर हाँ किसी और का लैब है तो फिर देखेंगे, वो भी बताएंगे, और मैं भी पॉसिबल होगा तो उसमें ज्वाइन हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी रहती है, ठीक है। तो पॉसिबल होगा तो मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा, और कॉमन जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है तो वो दे देंगे रिगार्डिंग ये जो लिखना है, मतलब जो अभी जर्नल जो हम बनाते थे, तो अभी जर्नल का फॉर्मेटिंग कैसा रहेगा वो अब हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जो रिजल्ट्स अभी आप सबने मिले आपको, जो आपने प्रैक्टिकल जो भी किया है उसके डेटा है उसको अच्छे से सेव रखना है ना। ये सब अपने अच्छे से बढ़िया, अभी सिर्फ ऑनलाइन ऐसे ही हो जाता है, प्लॉट करना है, कुछ वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको, है। ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हो, किसी को अगर इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हो ही रहा है डायरेक्टली, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर अटेंशन, एंड मे बी वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड मे बी हाँ, टाइम टेबल अगर अपडेट हो जाएगा तो वो एक बार मैं इसमें ही डाल दूंगा, ये जो अपना व्हाट्सएप ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसमें अपडेटेड टाइम टेबल डाल दूंगा, या तो फिर आपके जो सीआर है उनको भी मैं भेज दूंगा, तो वो भी आपको शेयर कर देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अच्छा, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, because there is no need for this.